करो करो, पाप से लड़ो लड़ो, आगे तुम बढ़ो बढ़ो। भारत माता की वंदे मातरम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। বারাসাত সাংগঠনিক জেলায় ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী, আমাদের সবার নয়নমণি যশস্বী প্রধানমন্ত্রীজিকে আমাদের সবার তরফ থেকে কোটি কোটি প্রণাম। আগামী 4 জুন বারাসাত এবং বসিরহাট লোকসভাও মোদি গ্যারান্টির অংশ হতে চলেছে এবং আমরা এক ইতিহাসের সাক্ষী হতে চলেছি। এখন এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী এবং উনাকে সংবর্ধনা দেবেন বারাসাত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি মাননীয় শ্রী তরুণ কান্তি ঘোষ মহাশয়। উনি উত্তরে দিয়ে সংবর্ধনা জানাবেন যশস্বী প্রধানমন্ত্রীজিকে। এই বারাসাত লোকসভার অন্তর্গত চাকলাধাম, এই চাকলাধামের পরম পূজনীয় শ্রী লোকনাথ বাবার ধাম। এই ধামের লোকনাথের মূর্তি দিয়ে মাননীয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে সংবর্ধনা জানাবেন বারাসাত সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্রী তরুণ কান্তি ঘোষ মহাশয় এবং উনাকে সহযোগিতা করবেন জেলার সভাপতি শ্রী শেখর চ্যাটার্জি মহাশয় এবং তুহিন মণ্ডল মহাশয়। শক্তির প্রতীক, সাধনার প্রতীক মা দুর্গা। এই মা দুর্গার মূর্তিকে ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রীজিকে সংবর্ধনা জানাবেন বিভাগ কনভেনার এবং ক্লাস্টার ইনচার্জ মাননীয় শ্রী কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি মহাশয় এবং উনাকে সহযোগিতা করবেন জেলার ইনচার্জ শ্রী চণ্ডীচরণ রায় মহাশয়, লোকসভা ইনচার্জ শ্রী অনুপ দাস মহাশয় এবং লোকসভার কো ইনচার্জ শ্রী অনুপম ঘোষ মহাশয়। এর পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীজিকে সংবর্ধনা দেবেন এই বারাসাত লোকসভার প্রার্থী শ্রী স্বপন মজুমদার মহাশয় এবং উনাকে সহযোগিতা করবেন জেলার সাধারণ সম্পাদকগণ ভাস্বতী সোম মহাশয়া, শ্রী দীপঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়, শ্রী রাজীব পোদ্দার মহাশয় এবং শ্রী সন্দীপ রায় মহাশয়। এর পরবর্তীতে আপনাদের সামনে মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরবেন পাশের জেলা বসিরহাট জেলার লড়াকু নেত্রী শ্রী রেখা পাত্র মহাশয়। উনি এই লোকসভার প্রার্থীও বটেন এবং প্রধানমন্ত্রীজির স্নেহধন্যা।
ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সমর্থনে এই মঞ্চ, সম্মানীয় মঞ্চ এবং এই মঞ্চের সামনে উপস্থিত সমস্ত এই বিজেপি পরিবার, আমার মা, ভাই, বাবা, সবাই আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন। আপনাদের কাছে নতুন করে কিছু বলার নেই। আপনাদের এই বোনের নামে যে কালিমা লিপ্ত করা হচ্ছে সেটা একটা মিথ্যে, সেটা আপনাদের হয়তো জানতে বাকি নেই। এই বোন কখনোই 2000 টাকায় কারোর কাছে বিক্রি হয়নি, আর হবেও না। কেননা এই বোন আপনাদের সাথে ছিল আর আজীবন আপনাদের সাথে থাকবে। আর আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মানীয় মঞ্চে দাঁড়িয়ে সেই প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছে। তাই আপনাদের কাছে আমি বেশি কিছু বলবো না, দুই একটা বক্তব্য রেখে আমার বক্তব্য শেষ করব। আজকের এই মঞ্চে যেটা আমার আপনাদের কাছে বলার ছিল, আজকের এই মঞ্চে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তৃতীয়বারের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি করছি। এই গ্যারান্টি আমার মা ভাই বোনেদেরকে গ্যারান্টি সভা নিতে হবে। তাই আমার মা বোনেরা একবার এই গ্যারান্টি সভা আমাদের মোদিজি, মাননীয় মোদিজির নামে একবার জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। আর এই পশ্চিম বাংলায় আজকের যে তৃণমূলের ছোট ছোট যে পিঁপড়ারা এখনো আমাগাড়ি দিচ্ছে আর মা বোনেদেরকে হুমকি দিচ্ছে আর মিথ্যে কেস দিয়ে যেসব ভাই মায়েদেরকে হাজতবাস করাচ্ছে, তার উপযুক্ত জবাব আমরা দিচ্ছি। আমরা এই 2024-এর জুনের 4 তারিখে তার জবাব দেব। আর সেই জন্য আজকের আমার মা বোনেদের এই জনসভা, আমার মা বোনেরা প্রস্তুত নিন। আর যেন দ্বিতীয়বার যেন এই তৃণমূল বাহিনী, মুখ্যমন্ত্রীর পোষা দুষ্টু ছেলেরা যেন মাথা উঁচু করে না বাঁচতে পারে, মাথা উঁচু করে কোন মা বোনের ঘরে যেন না ঢুকতে পারে, কোন বাবার জমি না কাড়িয়ে নিতে পারে। তার জন্য আজকে প্রতিজ্ঞা করুন আপনারা। আপনাদের প্রতিজ্ঞা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির প্রতিজ্ঞা। আজকে এই প্রতিজ্ঞা আপনারা করবেন, সেই প্রতিজ্ঞার সম্মান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি পাবে। তাই আমি বলছি, আমি আপনাদের সাথে আজীবন থাকবো, আপনাদের ঘরের মেয়ে। কোনোদিন মুখ্যমন্ত্রীর পোষা কোনো দুষ্টু ছেলে মেয়েদের মতন পিছিয়ে যাব না। এ দলের থেকে ও দলে গিয়ে রং বদলাবো না। যেটা সন্দেশখালিতে হয়েছিল সেটা পুরো পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানতে পারবে আর জেনে গেছে। আর যে মা বোনেরা এখনো অব্দি মুখ খোলেনি তারাও মুখ খুলবে। আর সেই মানুষদের মুখ খোলার জন্য আমার মা বোনেরা তাদের পাশে যাবে সম্মানের সাথে সাথে। তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ছিলেন আর তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রীজি হচ্ছেন। আর এই বসিরহাট আমরা ওনাকে উপহার হিসেবে দিচ্ছি। তাই আমার এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আমি বাড়াবো না, আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করছি। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, জয় জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। নমস্কার। ধন্যবাদ রেখা পাত্র মহাশয়কে। এবার আমাদের সবার নয়নের মণি এবং আমাদের সকলের আবেগে এবং যার বাস আমাদের মনেতে, সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বক্তব্য রাখবার জন্য আহ্বান জানাই।
नमस्कार। केमेन आছেন भारतवासी? केमेन आছেন बसीरहाटवासी? আপনাদের সকলকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা প্রণাম আর ভালোবাসা। सबसे पहले तो मैं मां काली को प्रणाम करता हूं। उनके आशीर्वाद से हम सब ने मिलकर साइक्लोन का मुकाबला किया है। साइक्लोन पर लगातार भारत सरकार की नजर थी। मैं भी लगातार संपर्क में था। हमारी एनडीआरएफ और दूसरी टीमों ने अच्छा काम किया है। केंद्र सरकार हर प्रकार से हर संभव मदद राज्य सरकार को दे रही है। भाइयों और बहनों, आज भारत विकसित होने के रास्ते पर चल पड़ा है। इस विकास का सबसे मजबूत पिलर हमारा पूर्वी भारत है। पिछले 10 साल में बीजेपी सरकार ने जितना पूर्वी भारत पर खर्च किया है, उतना पिछले 60-70 साल में नहीं हुआ था। एक कुछ बच्चे, जरा एसपी जी और कैमरामैन, ये कुछ बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया तस्वीर बना के लाए हैं। इधर भी एक बेटी कब से खड़ी है, जरा ले लीजिए। आपने एड्रेस लिखा है पीछे? अपना नाम एड्रेस लिख देना, मैं आपको जरूर चिट्ठी भेजूंगा। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आप देखते हैं, जब से आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, हमने रेलवे, एक्सप्रेसवे, वाटरवे, एयरपोर्ट, हर तरह से पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम किया है। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश पूर्वी भारत में रोजगार और स्वरोजगार के भी नए मौके बना रहा है। साथियों, यहां पश्चिम बंगाल के एक हिस्से में कोयला और दूसरी खनिज संपदा है, तो दूसरी तरफ एक बड़ी कोस्टलाइन है। यहां डायमंड हार्बर जैसा ट्रेडिंग सेंटर है। आजादी के पहले एक समय वो भी था जब बंगाल लाखों देशवासियों को रोजगार देता था। आज बंगाल में ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद पड़ी है। यहां से नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये बंगाल की दुर्दशा हुई है, बंगाल की बर्बादी हुई है, ये हाल किसने किया?
मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बर्बादी कौन लाया यहां पर? पहले बंगाल को कांग्रेस ने लूटा, फिर लेफ्ट ने लूटा और अब टीएमसी दोनों हाथों से लूट रही है। कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी तीनों ही पश्चिम बंगाल की गुनहगार है। लोग ये भी जानते हैं कि सीपीएम को दिया हर वोट ये टीएमसी के खाते में जाएगा। ये पर्दे के पीछे टीएमसी और लेफ्ट वो एक ही सिक्के की दो बाजू है। और यहां के मुख्यमंत्री ने घोषणा भी कर दी है कि वो दिल्ली में इनका सहयोग करेगी। इसलिए अब बंगाल पर्दे के पीछे चलने वाले सारे खेल समझ चुका है और इसलिए पश्चिम बंगाल हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। भाई और बहनों, 10 साल पहले जब आपने मुझे अवसर दिया था तो मैंने गारंटी दी थी, पूरे देश को गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। याद है ना? मैंने केंद्रीय स्तर पर 10 साल में एक भी घोटाला नहीं होने दिया। अब मोदी देश को और पश्चिम बंगाल को खास एक और बड़ी गारंटी दे रहा है। मोदी की गारंटी है, पहले मैंने गारंटी दी थी न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब मेरी गारंटी है, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा और जिसका खाया है उसको मैं लौटाऊंगा। ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी के नेताओं के पास भी ये जो नोटों के पहाड़ निकले हैं, एक एक रुपये का हिसाब होगा। जिसका लूटा है उसको वापस कैसे मिले, इसके लिए मैं कानूनी रास्ते बना रहा हूं। अब तक लगभग 17,000 करोड़ रुपया, आंकड़ा याद रखेंगे, जो लोगों से लूटा गया था, ऐसे 17,000 करोड़ रुपया उन लोगों को मैं वापस दे चुका हूं, लौटा चुका हूं। बंगाल में भी आपका लूटा हुआ धन आपको वापस मिले, मैं उसके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं। इंडी वाले गरीब और मध्यम वर्ग की कमाई का एक्सरे करने की बात करते हैं। अब मोदी इन भ्रष्टाचारियों की, काले धन की, गंदी कमाई की, अब मैं उसका एक्सरे निकालूंगा।
ऐसा एक्सरे कि इनकी आने वाली पीढ़ियां भी भ्रष्टाचार करने से पहले 100 बार सोचेगी। भाई और बहनों, टीएमसी साथियों, आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह, आपका ये आशीर्वाद मेरे जिंदगी की बहुत बड़ी ऊर्जा है। मैं देख रहा हूं यहां आपके पास खड़े रहने की जगह नहीं है। बारिश के कारण तकलीफ हुई कल, और आज इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं आप। लोग छत पे खड़े हैं, और अभी मैं हेलीपैड से आया, 3.5 किलोमीटर दोनों तरफ ऐसी ही भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से। यानी ये प्यार, ये उत्साह मैं आपका ये कर्ज है ना, वो बंगाल का विकास करके कर्ज चुकाऊंगा मैं। भाइयों और बहनों, टीएमसी और इंडी गठबंधन को आपके विकास से कोई मतलब नहीं है। इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है अपने वोट बैंक का तुष्टीकरण। देश में संविधान संविधान संविधान, तानाशाही तानाशाही तानाशाही, ये रात दिन चिल्लाने वालों की जमात, ये जो जमात है ना, वो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जरा यहां आकर देखो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। बंगाल में टीएमसी ने ओबीसी को जो धोखा दिया, उसकी कलाई कोर्ट ने खोल दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि 77 मुसलमान जातियों को ओबीसी घोषित करना ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। यानी टीएमसी ने लाखों ओबीसी नौजवानों का जो हक मिला था उनको संविधान ने दिया था, बाबा साहब आंबेडकर ने दिया था, देश की पार्लियामेंट ने दिया था, वो ओबीसी का जो हक था, रातों रात ये वोट जिहाद वालों को मदद करने के लिए इन्होंने लूट लिया है। और आप देख रहे हैं कि कोर्ट के इस फैसले का उसके बाद ये टीएमसी की सीएम क्या क्या बोल रही है, उनका क्या रवैया है। मैं तो हैरान हूं। यहां के जजों की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारी न्यायपालिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं जरा टीएमसी वालों से पूछना चाहता हूं, अब क्या जजों के पीछे भी अपने गुंडे छोड़ दोगे क्या? पूरा देश देख रहा है कि कैसे टीएमसी बंगाल में न्यायपालिका का गला गौंट रही है। साथियों, टीएमसी से सच बर्दाश्त नहीं होता। जो कोई भी टीएमसी के गुनाह सामने लाता है,
टीएमसी उनको टारगेट करती है। आपने भी देखा है कि टीएमसी के एमएलए ने साफ साफ कहा कि हिंदुओं को भगीरथी में बहा देंगे। इस पर बंगाल के संतों ने टीएमसी को रिक्वेस्ट की कि जरा आप अपनी गलती सुधार लीजिए, और बड़ी नम्रता से रिक्वेस्ट की। लेकिन टीएमसी ने हमारे संत समाज को ही धनाधन गालियां देना शुरू कर दी। अब रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ, ये ऐसी महान संस्थाएं हैं, दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा है। उनके संतों को अपमानित करना, भाइयों बहनों, ये सब अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, वोट जिहाद को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। यहां संदेश थाली की बहनों ने इंसाफ मांगा तो टीएमसी ने उनको ही टारगेट कर दिया। बसीरहाट से उम्मीदवार हमारी बहन रेखा पात्रा अभी यहां मंच पर ही है, और क्या बढ़िया भाषण किया उन्होंने। ये मीडिया वालों का ध्यान गया कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। टीएमसी के पास एक नेता ऐसा नहीं होगा जो बहन रेखा पात्रा जी जैसा भाषण कर सके। देश देख रहा है कि कैसे एक गरीब की बेटी को बीजेपी ने देश की संसद में सम्मानपूर्वक पहुंचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। और मुझे विश्वास है ये एक पवित्र कार्य है। ये नारी शक्ति के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। अगर रेखा पात्रा ताकतवर होगी तो हिंदुस्तान की महिलाओं की आवाज वो हिंदुस्तान की संसद में उठाएगी। मैं उनके साहस की, उनकी हिम्मत की सराहना करूंगा। वो टीएमसी की इतनी बड़ी सत्ता से टकरा रही है। वो खुद मां दुर्गा की सच्ची पुजारी लगती है। बंगाल में शाहजहां शेख जैसे अत्याचारियों का हौसला, और ऐसे एक दो नहीं है, हर गली मोहल्ले में ऐसे लोग बैठे हैं। इनका हौसला न बढ़े इसलिए बहन रेखा पात्रा को जिताना बहुत जरूरी है। साथियों, मां माटी मानुष की बात कहने वाली टीएमसी ने मां को भय दिया है, माटी का अपमान किया है। यहां तक कि महिला एमएलए जो टीएमसी के अंदर गुंडागर्दी के खिलाफ बोलती है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। मैं पश्चिमी मेदिनीपुर में केशपुर की माताओं बहनों का एक वीडियो देख रहा था। वो भी टीएमसी के गुंडों से बचाने की गुहार लगा रही है। ऐसी टीएमसी को अपने वोट की ताकत से सजा देना बहुत जरूरी है। साथियों, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के कारण टीएमसी ने सीएए के खिलाफ भी झूठ फैलाया है।
सीए के खिलाफ झूठ। पहले सीए को रोकने की कोशिश की, मोदी डरा नहीं, मोदी झुका नहीं। मोदी ने कहा मैं सही समय देख करके ले आऊंगा, मैं लाया। अब उनको हाथ पैर पछाड़ रहे हैं। पहले कहते थे लागू नहीं करूंगे, लागू हो गया, यहां के लोगों को नागरिकता मिलने लगी। अब वो झूठ फैला रही है, भ्रम फैला रही है। लेकिन आज पूरा देश देख रहा है, सैकड़ों शरणार्थियों को नागरिकता मिल चुकी है। किसी से कुछ भी छीना नहीं गया, बल्कि उन्हें नागरिकता देकर के मां भारती के बेटे के रूप में, बेटी के रूप में सम्मान दिया है। इसलिए मतवा साथियों को भी मैं आज यहां आया हूं तो बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको अब भारत की नागरिकता से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और मोदी काम शुरू कर चुका है, नागरिकता देना चल रहा है, और कुछ ही महीनों में आप सबको पूरा काम पूरा भी हो जाएगा। ये नागरिकता देश का संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। और मैं आपको एक और गारंटी दूंगा, टीएमसी तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत मोदी के एक संकल्प को न हिला सकती है, न डुला सकती है। और न ही कोई रोक सकता है। भाई और बहनों, विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों को सशक्त करना, ये मोदी की प्राथमिकता है। तभी तो मोदी आज गरीबों को पक्का घर दे रहा है, और वो भी महिलाओं के नाम पक्का घर दे रहा है। और मोदी सिर्फ 4 दीवारें नहीं देता, जब घर देता है तो घर में टॉयलेट, घर में बिजली, खाना पकाने के लिए सस्ता सिलेंडर, नल से जल, मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज, क्या कुछ नहीं है। जिंदगी जीने के लिए सब कुछ है। और इससे हमारी नारी शक्ति को बहुत मदद मिली है। अब तो माताओं बहनों को चावल की चिंता भी नहीं करनी पड़ती। मोदी आने वाले 5 साल तक मुफ्त चावल देता रहेगा। साथियों, अब मोदी ने एक और गारंटी दी है। ये गारंटी आपका बिजली बिल जीरो। मोदी आपका बिजली बिल जीरो कर देगा। और बिजली बिल जीरो करने के लिए योजना क्या है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। इसमें अप्लाई करने वाले परिवार को अपने छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए मोदी सरकार 75,000 रुपया देगी।
हर घर के लिए 75,000 रुपये और ये सोलर पैनल से मुफ्त बिजली भी मिलेगी और जो ज्यादा बिजली होगी वो सरकार खरीदेगी, उसकी कमाई भी होगी। साथियों, मोदी हर आयु के लोगों की चिंता कर रहा है। आज हमारे देश में करीब 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 70 साल से ऊपर की है। ऐसे अनेकों बुजुर्ग यहां बंगाल में भी हैं। मोदी ने तय किया है कि ऐसे सभी साथियों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। लेकिन टीएमसी की सरकार यहां आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दे रही है। बीजेपी को मिला आपका हर वोट टीएमसी पर इस योजना से जुड़ने का दबाव डालेगा। साथियों, देश ने दिल्ली में मोदी सरकार बनाना पक्का कर लिया है। इसलिए 1 जून को बारासात सहित हर सीट पर कमल ही खिलना चाहिए। खिलेगा, घर घर जाएंगे, मतदान कराएंगे। बारासात से हमारे साथी स्वपन मजूमदार, उनको भारी वोटों से जिताकर भेजना है। बसीरहाट से बहादुर बेटी बहन रेखा पात्रा जी को भी आपको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है। इनको मिला हर वोट कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना, तो वो कमल सीधा सीधा दिल्ली में मोदी के खाते में जमा हो जाएगा। और इसलिए मोदी को मजबूत करने के लिए इन दोनों को विजयी बनाइए। आप एक मेरा काम करेंगे, आप लोग मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? पक्का करेंगे? अच्छा, घर घर गांव गांव जाइएगा और वहां जो भी देवस्थान हो, तीर्थ स्थान हो, पूजा स्थान हो, मोदी की तरफ से वहां जाकर के मत्था टेकना और परमात्मा से आशीर्वाद मांगना कि मोदी जी की तरफ से मैं मत्था टेक रहा हूं या टेक रही हूं, और ईश्वर से आशीर्वाद मांगिए। मोदी के लिए नहीं, मोदी के परिवार के लिए नहीं, हमारे भारत को विकसित भारत बनाने के लिए आशीर्वाद मांगिए। जाएंगे आप लोग घर घर, गांव गांव जाएंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हित भरो भरो, धरा का हित करो करो, पाप से लड़ो लड़ो, आगे तुम बढ़ो बढ़ो।